Hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope all of you are doing so great. Today we are going to discuss about the topic heterogeneous mixture. All of you please take out your notebook so that you can note down the important points. Okay? So without any further delay, let's start today's class. In the last class, हमने क्या पढ़ा था? We discussed about the mixture, right? So there are different types of mixture, head homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. ठीक है? तो आज हम heterogeneous mixture के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? तो ये देखो homogeneous mixture में हमने क्या डिस्कस किया था? We discussed about the solution, right? Homogeneous mixture में क्या आता है? Solution होता है, right? True solution. Heterogeneous mixture में we will discuss about colloids and the suspensions. Okay, चलो फिर let's start today's session. So, heterogeneous mixture वो mixtures होते हैं जिसमें components uniformly distributed नहीं होते. Okay, so all the components are not uniformly mixed and they are visible boundaries. For example, here you can see ये पर्पल कलर के बॉल्स जो है वो एक साइड है, ग्रीन कलर के एक साइड है, यहाँ पे बीच में फिर से पर्पल कलर के आ गए, इधर भी पर्पल कलर के है, राइट? सो देयर इज अ क्लियर boundaries which we can see over here, right? So in this example also, here also you can see यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो जेम्स है ये सारे एक तरफ है, इधर है ही नहीं ब्लू कलर के जेम्स, इधर राइट है रेड कलर के है. सो हियर वी कैन सी अ क्लियर बाउंड्री, right? So this is the heterogeneous mixture. Salads maybe we can see every components, every vegetables or the if there is a fruit chart, every fruit items we can see it very clearly. पूरा separate होता है. ठीक है? So that is a heterogeneous mixture. For example, sand in water, right? So if we are mixing the sand in water, so sand क्या होगा? Sand will clearly visible and after sometimes it will settle down, right? So it will form a sedimentation, है ना? तो एक पूरा प्रॉपर बाउंड्री हमको दिख रहा है उसमें. सॉइल में भी सॉइल इज अ मिक्सचर, राइट? मिट्टी में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, पोल्यूटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, राइट? That is also a mixture. Smog, okay. हमने last class में we discussed about the homogeneous mixture. There we discussed about the air. So when I'm talking about a pure air, it is a homogeneous mixture because it contains the gases. But when it is a polluted air, जैसे अब इसमें smoke है, so then it becomes a heterogeneous mixture. Okay, we call it as a smog. Okay, for the smoke plus fog is equals to smog. Okay, सलाद इट इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर. ठीक है? तो अब हेट्रोजिनस मिक्सचर में आते हैं दो कैटेगरीज, वन इज कोलॉइड एंड अनदर इज द सस्पेंशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कोलॉइड. कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर इसको कोलॉइड बोले तो इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अब इसमें आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो होमोजेनस होना चाहिए, राइट? बट इट appears as homogeneous but it is not homogeneous. ठीक है? इसको आप एकदम से देखोगे तो वो होमोजेनस लगेगा बट इफ वी टॉक अबाउट इन अ माइक्रोस्कोपिक वे, सो इट इज नॉट होमोजेनस, इट इज अ हेट्रोजीनस. भले ही वो हमें देख के यूनिफॉर्म लगे बट कहीं कहीं पे उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े इस तरह के क्लस्टर्स में हो सकते हैं. All right, so that's why it is categorized under the heterogeneous mixture. For example, milk, इट इज अ कोलॉइड. तो अब मिल्क को देख के आप लगोगे कि ये तो होमोजेनस है बट वो एक्चुअली इट अपियर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज नॉट होमोजेनस. याद रखना ये चीज. ठीक है? तो दिस इज कोलॉइड. तो अगर कोलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले तो ये देख लेते हैं. कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर. ठीक है? जो पार्टिकल्स है इट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज बिकॉज छोटे होते हैं पार्टिकल्स, बट इट इज लार्जर देन द ट्रू सॉल्यूशन, उससे लार्ज होते हैं. ठीक है? सो इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. ओके, लार्जर द सॉल्यूशन एंड लेसर स्मॉलर देन द सस्पेंशन. तो बीच में होते हैं कोलॉइड्स के पार्टिकल्स. सो
it is helping to, it is like able to scatter the beam of light. जब लाइट का टॉर्च हम लगाएंगे तो it will scatter it, so it shows a Tyndall effect. तो basically we can see the path of the light over here. You can see solution में हमने already discuss किया था, इसमें जो है ये transparent होता है पूरा, ये this is transparent. ठीक है, it is transparent because all the light rays are passing through this, so we cannot see the path of the light in the solution. इसमें कुछ path of light दिख ही नहीं रहा है, पूरा transparent है, ऐसा लग रहा है कि light तो गई ही नहीं, right? अब colloid में because the particle size are larger than the solution, तो इसमें स्कैटरिंग होता है, तो लाइट के जो रेज है ना वो पार्टिकल से हिट करके इधर उधर स्कैटर कर जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन सी द path of the light. And this is called as Tyndall effect. The scattering of the light is called as Tyndall effect. ठीक है. कोलॉइड्स जो है दे आर स्टेबल इन नेचर, पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन नहीं होते. ओके, जैसे अगर मिल्क है, मिल्क को अगर आप 2 घंटा एक ही जगह में रख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो वाइट है वो नीचे आ जाएगा ऊपर पानी रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना. तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. ओके, ऑलराइट, इट इज स्टेबल इन नेचर, although it is a heterogeneous, but particles do not settle down. And we cannot separate the particles through filtration. All right, because particles are very, very small in size, so we cannot separate it out through the filtration. And हम अब separate कैसे करेंगे? Centrifugation method से we can separate it out, या फिर churning से भी कर सकते हैं अगर manually करना हो तो, है ना. या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज अ मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है जिसमें दैट मशीन इज रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. तो अगर आप किसी कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में किसी कोलॉइडल सोल्यूशन को उसमें रख दोगे तो इतना तेज रोटेट होगा कि जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे. एंड दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, please take a note of this. Okay, so when a beam of light is passed through the colloid particles, the particles are scattering the beam of light and we see the path, and this is called as the Tyndall effect. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जैसे मैंने मिल्क का एग्जाम्पल बताया, अगर यहाँ पे ये मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दिखेगा, टिंडल इफेक्ट दिखेगा. ठीक है, टॉर्च से अगर ऐसे करेंगे तो हम हमें वो पाथ जो है वो दिखेगा कि लाइट कहाँ से जा रही है. ऐसे ही जैसे विंडो से अगर आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा अगर विंडो ओपन है तो वहां से अगर लाइट आ रही है ना, सूरज की रोशनी आ रही है तो हमको वो दिखता है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे डस्ट है, राइट. रूम में क्या है? डस्ट है, प्योर एयर तो है नहीं. प्योर एयर, सी अगर प्योर एयर है, ठीक है, इफ देयर इज नो डस्ट नो पॉल्यूशन देन इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ सॉल्यूशन, उसमें हमको कुछ नहीं दिखेगा, कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा. ठीक है, बट नेचुरली ऐसा हो तो होता नहीं क्योंकि डस्ट तो होता ही है ना. तो अगर डस्ट है तो वो डस्ट पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू स्कैटर द लाइट एंड वी कैन सी द पाथ क्लियरली. ओके, हमें क्लियरली ये पाथ विजिबल होगा लाइट का. ओके okay, ऐसा हम फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं. फॉरेस्ट में चले जाओ, ठीक है, फॉरेस्ट या फिर आसपास अगर बहुत ज्यादा पेड़ वाले एरियाज है वहां पे जा सकते हो तो वहां पे भी आपको दिख जाएंगे टिंडल इफेक्ट. सो दिस phenomena is called as Tyndall effect. ठीक है, and it we can see this in the colloidal solution. Very important topic. All right, now moving on to the next, that is the disperse phase and the dispersion medium. Now in the solution, when we were discussing about the true solution, you can see that video also. Okay, I will link it down. So मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूंगी, उसको जरूर देखना. वहां पे हमने डिस्कस किया था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, है ना, कि सॉल्यूट वो होता है जिसको हम मिक्स करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में. ठीक है, तो इन केस ऑफ कोलॉइड्स वी टॉक इट अबाउट एज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. ऑल राइट, सो डिस्पर्स फेज क्या है? इट इज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट. ठीक है, बेसिकली सॉल्यूट ही है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, इसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं या फिर डिस्पर्स पार्टिकल्स. ठीक है, डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज. और किस में मिक्स हो रहा है? दैट इज द डिस्पर्स्ड मीडियम.
ठीक है। components in which disperse phase is suspended as is known as dispersing medium। ठीक है। तो इसको आप बराबर मान लो कि ये सॉल्यूट जैसा हो गया और दिस इज बिहेविंग लाइक अ सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है ये। ऑलराइट, और ये सॉल्यूट की तरह। ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे जेलीज है ना, whipped क्रीम है, pumice stone है, मिस्ट है, मिल्क है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सॉलिड का भी एग्जांपल आ गया, लिक्विड का भी एग्जांपल आ गया, गैस का भी एग्जांपल आ गया। सो वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, है ना। तो लेट्स सी दिस अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ठीक है। और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, जैसे कि सोल। सोल किसको बोलते हैं? जिसमें डिस्पर्स फेज है सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। मींस सॉलिड किस में मिक्स हो रहा है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड। जैसे कि पेंट, जेलीज। जेलीज कैसे बनाते हैं? अगर अगर होता है या फिर जेलेटिन पाउडर होता है, दैट इज द सॉलिड, है ना। उसको हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो फिर जेली बन रहा है। तो डिस्पर्स फेज क्या हो गया उसमें? जेलेटिन पाउडर विच इज सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया उसमें? वाटर विच इज द लिक्विड। ठीक है। तो अब क्या बन गया? जेली बन गया। ठीक है, जेली या जेल्स जो होता है, राइट, ये तो हम किचन में भी बनाते हैं, यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो। ठीक है, परचेज द जेलेटिन पाउडर फ्रॉम द मार्केट। उसको थोड़ा गर्म पानी में, पानी को थोड़ा ल्यूक वार्म करके उसमें मिक्स करो, एकदम जेली बन जाएगा। सो वी कॉल इट एज अ सोल। ओके। Next is the emulsion. Emulsion is dispersed phase is liquid and dispersion medium is liquid. All right, जैसे कि मेयोनीज है। ठीक है। मेयोनीज में डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड होता है, मिल्क से भी बनता है मेयोनीज। जो फैटी, थोड़ा फैटी मिल्क होता है, फ्रूटफुल क्रीम, जो क्रीम होता है बेसिकली उससे बन सकता है। ठीक है। और एग से भी बनता है मेयोनीज। ठीक है, तो वो लिक्विड है। डिस्पर्स मीडियम इज ऑल्सो द लिक्विड। तो मिल्क, सलाद, क्रीम, ऑल ऑफ दीज आर द इमल्शन। फोम की अगर हम बात करें तो डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। जैसे कि बियर फ्रॉथ होता है, सोप सड्स, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम। ओके। तो उसमें थोड़े बहुत बबल्स होते हैं या फिर फ्लफीनेस होता है व्हिप्ड क्रीम में। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है, अंदर उसके गैस है। ठीक है। फिर आते हैं सॉलिड सोल। ये था सिर्फ सोल, यह है सॉलिड सोल। इसमें दोनों ही क्या है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, बोथ आर सॉलिड। फॉर एग्जांपल alloy, alloy we have already discussed in the previous class, please do check out that video. Okay, gemstones, ठीक है, that is also the example of solid soul। जैसे कि कंचे आते थे, कंचों से खेला हुआ होगा कभी आप लोगों ने बचपन में, राइट। तो दैट इज द सॉलिड सोल। उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं, राइट। तो दैट इज द सॉलिड सोल। या फिर इस तरह के आपके पेपर वेट्स भी आते हैं। ठीक है। तो जेमस्टोन्स, रूबी, ग्लास, ऑल ऑफ दीज आर द सॉलिड सोल। सॉलिड इमल्शंस, ये क्या होता है? डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, जैसे कि बटर या फिर चीज। ठीक है। सॉलिड फोम क्या होता है? गैस है, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड, प्यूमिस, मार्शमैलो। ठीक है। ये सब क्या है? सॉलिड फोम। सॉलिड एरोसोल्स होता है, सॉलिड डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम इज द गैस, जैसे कि स्मोक है, डस्ट इन एयर है, बैक्टीरिया अगर एयर में है, तो ये सब क्या है? सॉलिड एरोसोल्स है। ठीक है, बैक्टीरिया इन द एयर या फिर वायरस भी हो सकता है। यू नो कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये वर्ड बहुत था कि एरोसोल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वायरसेस, राइट। एरोसोल्स क्या है? वो वायरसेस, दैट इज द डिस्पर्स फेज, द सॉलिड। ओके। डिस्पर्शन मीडियम इज द गैस, तो सॉलिड एरोसोल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज द लिक्विड एरोसोल्स। तो लिक्विड होता है और ये डिस्पर्शन मीडियम गैस हो गया। तो अब ये इसमें होते हैं फॉग, मिस्ट, क्लाउड या फिर स्प्रेज, जो स्प्रे वाले आते हैं। ठीक है। मेनली आप लोगों ने देखा होगा होली के टाइम पे जो स्प्रेस करते हैं। ठीक है। तो वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एरोसोल्स। ऑल राइट, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। चलो, मूविंग ऑन नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशंस। इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ऑल राइट, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते एंड दे रिमेन्स इन अ सस्पेंडेड फॉर्म। ठीक है। एंड आफ्टर समटाइम्स दे फॉर्म अ सेडिमेंट। ठीक है, ये सेडिमेंट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि
ऑफ कोर्स कितनी देर तक फ्लोट करेगा ये, राइट? आफ्टर सम टाइम सेडिमेंट हो जाएगा। फिर भी वी कैन सी देयर आर सम पार्टिकल्स व्हिच आर सस्पेंडिंग इन द liquid. Okay, so this is the suspension. Now in case of suspension the particle size are very very large, बहुत ज़्यादा large होते हैं ये, like it is larger than 100 nanometer. ठीक है, solute particles settle down, like we can see the sedimentation process over here when it is settling down, and we can separate it by the filtration. Normal filtration technique से हम separate कर सकते हैं. It is a heterogeneous mixture. Okay, particles we can see clearly through our naked eyes. Okay, and particles of suspension do not pass through a filter paper. तो हम filtration से उसको separate कर सकते हैं. ठीक है, अब लाइट जब पास होगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट, तो इसमें भी एक तरह से वी यू कैन से इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, और it is going to reflect the light, because if the particle size is so much larger it will do the reflection. ठीक है, light will scatter and it will reflect also. ठीक है, so this is the suspension. Okay, I hope it is clear to all of you. चलो लेट्स हैव अ क्विक समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है. इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर of solute and solvent. Colloid, it appears to be homogeneous but it is a heterogeneous mixture. Suspension, it is a heterogeneous mixture, देख के ही पता चल जाता है. Solution में particle size is less than 1 nanometer. Colloid में particle size is in between 1 to 100 nanometer. Suspension में it is more than 100 nanometer. Okay. True solution में visibility, we cannot see the particles through our naked eyes. Colloid में भी we cannot see the particles. Okay. And suspension में we can see the particles. True solution में it do not scatter the light. Alright, so it is transparent, clearly transparent. Colloid में it is going to scatter the light, so we can see the Tyndall effect. It appears to be translucent. ठीक है, suspension में it again it depends on different types of suspension. तो mostly क्या होता है, it is enough large enough to scatter the light, scatter or reflect the light. Suspension जो होते हैं वो opaque होते हैं mostly. ठीक है, light जो है वो reflect कर जाएगा. Alright, now true solution we cannot filter it. कोलॉइड में भी हम इसके पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते. सस्पेंशन में हम इसको फिल्टर कर सकते हैं इजीली. ऑलराइट, ट्रू सॉल्यूशन में कोई सेडिमेंटेशन नहीं बनेगा, कोलॉइड में भी कोई सेडिमेंटेशन नहीं बनेगा, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन बनेगा. ओके, पार्टिकल्स विल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमने डिस्कस किया. तो एक और समरी हम देख लेते पूरा एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का. ये डिफरेंस भी आपका आ सकता है. ऑलराइट, सो एलिमेंट्स जो है हमने एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. ठीक है, जिसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है. ऑल ऑफ दीज आर कंपाउंड्स. एलिमेंट में हम देख लेते हैं H2 है, N2 है, O2 या फिर O3. ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स. ठीक है, मिक्सचर आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, सो दे रिटेन देयर केमिकल properties. Every substances, or you can say every components in the mixture retain their individual chemical properties. Okay, elements have a unique atomic number, compounds have a unique chemical formula, mixture do not have any unique formula. Okay, elements they have properties that are unique to them. ऑल राइट, हाइड्रोजन है जिसमें इतने इसमें जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, सेम है. ठीक है, कंपाउंड्स दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट मेक अप देम. फॉर एग्जांपल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अगेन अ गैस. ठीक है, बट जब मिले तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, विच इज अगेन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. In case of water, hydrogen is a gas, ऑक्सीजन इज अ गैस, जब मिले क्या बन गया, लिक्विड बन गया, बिल्कुल अलग. ठीक है, मिक्सचर में क्या है, दे हैव प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द कंपोनेंट्स. तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स के है उसके बीच का प्रॉपर्टी होगा, या फिर उसी सारे कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज अलग से रिटेन होंगे. जैसे कि वाटर एंड सैंड, व्हेन वी आर मिक्सिंग वाटर एंड सैंड, तो सैंड जो है वो सैंड ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा. वाटर भी वाटर ही रहेगा, और हम उस दोनों को अलग से देख सकते हैं. ठीक है, that is the
मिक्सचर। ऑल राइट। एंड मिक्सचर में जैसे स्मोक का है, अगर मैं स्मोक की बात करूँ तो फॉग और स्मोक मिलके क्या बन गया, स्मॉग बन गया। तो इन केस में हम देख सकते हैं कि देयर इज अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों के बीच का एक प्रॉपर्टी आ जाता है मिक्सचर के केस में। ऑल राइट। Elements can be identified by atomic number and the symbol. Compounds can be identified the chemical formula and the properties. Mixture can be identified by the physical appearance and the compositions. All right. Elements जो है, it can be separated only by the chemical methods. Compounds में भी chemical method से ही हम इसको separate कर सकते हैं. Mixtures में हम mainly जो heterogeneous mixture है उसको हम physical method से separate कर सकते हैं. ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर में डायरेक्ट फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकता, बट यस अगर हम जैसे सॉल्ट एंड वाटर है तो उसको आप इवापोरेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो, है ना। शुगर एंड वाटर है उसको आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन। ऑलराइट, so that is it for this chapter, students. I hope you have enjoyed the chapter. ठीक है, so अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है so please hit the like button and click the subscribe button. मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, so take care, have a nice day all of you, bye bye। हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, सो एंड इफ़ यू हैव स्पेसिफिक चॉइस कि आप कौन सा चैप्टर करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इट डाउन बिलो। ठीक है, कि इसके बाद पर्टिकुलरली कौन सा चैप्टर करना है। ऑलराइट, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू अगेन।